Hello everyone, a very warm welcome to my channel Success Drivers by Deepti. In my today's video, we are going to begin with B.Ed first year syllabus of English. So let's begin. Here I am using two books. The first one here is Pedagogy of English. This book is written by S.M. Acharya. The second book that I am using is Teaching of English Language, and this book is written by Dr. Prem Mehta. Both these books are excellent and you can of course use these books for the teaching and learning of English language. So guys, now let's directly come to the point, and the first unit here says an overview of English language. So the first point here is what is language? Language को हिंदी में कहेंगे भाषा, and language is the most important characteristic feature of behavior. So basically what do I mean to say is language is something that helps us to express our feelings and thoughts with other people. So here the most important function of language is expression. It helps us to communicate and interact with people. So both three things you have to remember here. The first one is expression, the second one is interaction, and the third one is communication. So this was all about language. Let's go through a few of definitions that can help you out in the examination. So the first definition here with me is language is the dress of thoughts. This definition is written by Samuel Johnson. Now let's come to another definition which is quite easy and memorizable. So the first one was dress of thoughts, the second one is wine upon the lips. Language is the wine upon the lips. This definition is given to us by Virginia Woolf. So language tells us to express, communicate and interact with people, and without language we cannot even imagine the human civilization. So this all can be included as a part of meaning, definition and introduction of language. Now let's come to the next point, which is functions of language. Here I am having 9 functions of language with me, and I would be discussing with you all these functions one by one. So the first one here is directive function. Directive means direction. It helps us to give the directions to the people. Let's take a simple example here. I want a person to go left instead of right. So I would direct the person to go left instead of right. This is directive function, and this is possible only with the help of language. Now let's come to the second point. The second point here is informative function. So language gives us a lot of information. If in case we didn't know what is language, या फिर अगर हम बोल ही नहीं पाते, we are not able to express ourselves, then how can we get information from other people, from any print media or any mass communication medium? So let's take a simple example here. We get the information from the television, and television is a source of mass communication for all of us, right? So in the television, the anchors are making use of language again, and the information is passed from one individual to the entire society through language. Now let's come to the third point, which is expressive function. Again, we are able to express ourselves. Let's take a simple example here. I am expressing myself to you, my views, my ideas, my thoughts. I am expressing all these to you with the help of language, be it English, Hindi, bilingual, anything else. So basically the language plays an important role. Let's come to the fourth function here, which is communicative function. Again, the same point to be covered here also. It helps in communication, dealing with ideas, interactions and expressing ourselves. The next one is interactive function. Again, a simple one, interactions between two or more individuals with the help of language, be it a teacher and students. This is the best example we can cover here for interactions, right? Now let's come to the sixth point, which is aesthetic function. Aesthetic function is basically for the authors, writers, poets, etc. So basic क्या होता है? They make use of aesthetic. That means they want to incorporate many things in literature, right? So we are able to use language along with literature here with the help of aesthetic function, because they are making use of various personifications, similes, ironies, metaphors, etc. तो ये सब क्या है? They are going to add up to the material, to the language. So this is called as the aesthetic function. So coming to the cultural function, now culture and language both go hand in hand, right? तो अब इसका क्या मतलब होता है? India is consisting of various states. Now let's come to the first one. Let's take Punjab for example. Punjab में Punjabi people, they are speaking Punjabi language. So their culture is related to their language. So similarly, we can simply take an example of Assam. Assam में they are speaking Assamese, right? So in this way, they are having their own language as per their own culture. Coming to the next point here, 8th point, which is social
social functions. सोसाइटी में रहते हैं, we are living in a society, we have to express our ideas in front of them. If you want an ice cream, you have to tell your mother that yes, I want an ice cream. Unless you are able to express your ideas to your mother is never going to get the idea, right? या फिर अगर कोई स्टूडेंट को क्लास में कोई हिट कर रहा है, जब तक वो टीचर के पास नहीं जाएगा, अपनी सोसाइटी के पास नहीं जाएगा, तब तक नो वन इज गेट टू नो दैट उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है. सो सोशल फंक्शन इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ टू द सोसाइटी. कमिंग टू द लास्ट फंक्शन विच इज द प्रेजर्वेटिव फंक्शन. प्रेजर्वेशन का मतलब होता है स्टोर करके रखना. नाउ रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस, बी इट द बुक्स और द प्रिंट मीडिया, इन सब चीज़ों को हम स्टोर करके रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड अगेन दीज ऑल आर कंसिस्टिंग ऑफ आवर लैंग्वेज. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसमें द डिक्शनरी. द डिक्शनरी इज कंटेनिंग ample number of words, isn't it? तो अब वो सब वर्ड जो है वो preserved हो गए हैं. We are having a written note of all these words with us. So this was all about the preservative function. Now अभी हमने ख़त्म किया है functions of language. Coming to the very important topic here, importance of English language in India. So in India here is playing a very important role. इसमें I would be explaining you two things: position of English before independence and after independence. अब हमें independence कब मिली थी? 1947 में. So before 1947 and after 1947 we are going to deal with both the situations here. So coming to the position before independence, तो English की क्या position थी इंडिया के अंदर before the time we were independent? तो सबसे पहले तो ये queen थी languages की. Why it was considered as the queen of languages? When we come about the international function, अगर हम हमारी बाहर के world में जाएंगे, coming to all the countries, so वहाँ भी क्या use होती थी तब? English use होती थी. There was no other language which was being used in any other country. It was only English which was being used in all the countries. So English की क्या importance थी? It was the queen of languages, literally the queen of languages. Coming to the second function in India, language of office. अब offices में तब के टाइम पे कौन सी language use होती थी? It was only and only English. जब East India Company इंडिया में आई, they established their own functionaries here, they established their own offices and factories, industries, etc. तो अब क्या हुआ वहाँ पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही थे सारे के सारे, so they used to speak in English language only. इसलिए वहाँ पे हम इंडिया में हम कहते हैं it is the queen of languages and second one language of the office. तो ऑफिशियल कामों के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? English was used before independence. Now coming to the third point, as the guarantee of employment. अगर किसी भी इंडियन को उस टाइम पे इंग्लिश आती थी, इट वॉज अ ग्रेट डील, लिटरली अ ग्रेट डील. तो उस टाइम पे जिसको भी इंग्लिश आती थी उसको आराम से एम्प्लॉयमेंट मिल जाती थी, आराम से कहीं पे भी वर्क करने का चांस, अपॉर्चुनिटी मिल जाया करती थी. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मीडियम ऑफ एजुकेशन. जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, द गुरुकुल सिस्टम जो होता था इंडिया के अंदर कंप्लीटली वैनिश हो चुका था तब तक, राइट? सो क्या हुआ, यहाँ पे मिशनरीज खुलने शुरू हुए, पब्लिक स्कूल्स केम इनटू बीइंग एंड अलॉन्ग विद दिस द कॉन्वेंट स्कूल्स केम इनटू बीइंग. और वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपल्शन क्या हो गया था? द स्टूडेंट्स शुड बी टॉट इंग्लिश. सो इंडिया के अंदर क्या हुआ, इंग्लिश वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. तो इंडिया के अंदर जितनी भी एजुकेशन होती थी उसका मीडियम भी क्या बन चुका था? इंग्लिश बन चुका था. कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, इट इज़ कंसिडर्ड एज द कंपल्सरी सब्जेक्ट. ये अभी मैंने फिर से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. एजुकेशन के अंदर हमें क्या बोल दिया गया था? हिंदी शुड नॉट बी देयर, इंस्टेड इंग्लिश शुड take its place. So all the children should be able to learn to speak in English. अब ऐसा क्यों किया उन्होंने? ब्रिटिशर्स ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? बिकॉज दे न्यू कि इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती है. अब अगर वहाँ पे इंडियंस की पॉपुलेशन इतनी सारी थी फिर भी उन्हें कोई वर्कर्स नहीं मिलते थे. सो दे नीडेड इंग्लिश मैन, जो लोग इंग्लिश में बोल सके और उनके साथ कम्युनिकेट आसानी से कर सके. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोजिशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच वॉज position of India after independence. मतलब English की क्या position थी after independence? So here the first point is English was used as a link language. Link means जो हमें connect करती है. Connect किसके साथ करेगी? Britishers के साथ connect करती है English language हम लोगों को, Indians को, right? So it was used as a link language. अब link language जब बन गई थी after independence, so all the Indians became addicted to, basically they were all speaking in English, right? हिंदी के साथ साथ
Indians were aware of English language also. Coming to the next point, international importance. अब क्या था, हमने पहले भी पढ़ी है ये चीज़, that it was the queen of all the languages. That means English की पहले भी बहुत importance थी और आज भी बहुत importance हो चुकी थी after 1947, right? So it was international importance. तो हर जगह पे जो भी ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, किसी भी चीज़ की बात की जाती थी तो इट वाज द मेन थिंग कि हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके किसी भी कंट्री के साथ, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वाज एजुकेशनल इंपॉर्टेंस. येस, ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर हिंदी के साथ साथ वी केम अप विद द इंग्लिश लैंग्वेज और ऑल द बुक्स वर पब्लिश्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज. तो स्लोली और स्टेडीली क्या होना शुरू हुआ, हिंदी में जो बुक्स प्रिंट की जाती थी अब किस में प्रिंट की जाने लगी, इंग्लिश में प्रिंट की जाने लगी. सो द एंटायर एजुकेशन सिस्टम वाज फोकसिंग ऑन वन लैंग्वेज हियर व्हिच वाज इंग्लिश. नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज ट्रेड एंड कॉमर्स. इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि सारा ट्रेड और कॉमर्स किसकी मदद से होता था, इंग्लिश की मदद से ही हो पाता था. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज विंडो ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम लोग बात करें हमारा घर, दैट इज इंडिया, इंडिया वॉज जस्ट कंसिडरिंग हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है. वी वर जस्ट फोकसिंग ऑन हिंदी. बट जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, दे केम अप विद इंग्लिश लैंग्वेज और हमारे लिए एक विंडो बना गए कि जिसके थ्रू हम पूरे वर्ल्ड को पीप कर सकते हैं. दैट मीन्स ये हमें पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करती है. जस्ट इमेजिन वंस, अगर हमें आज भी खाली हिंदी आती होती, सो विल वी एबल टू लाइक कम्युनिकेट विद ऑल द कंट्रीज? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट पीपल? सो इट वॉज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इवन देन, और आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है इंग्लिश की हमारे वर्ल्ड के अंदर. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कल्चरल इंपॉर्टेंस. अगेन वी हैव डन दिस पॉइंट अर्लियर ऑल्सो. Coming to the next point, administration level. So here this is a new point. अब आजकल हम सब देखते हैं जितने भी petitions होते हैं, laws होते हैं या फिर कोर्ट के पेपर्स होते हैं, वो सब कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? दे आर यूजुअली रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो इंग्लिश जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जो कोर्ट में भी फॉलो होती है, ऑफिस में भी, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, राइट? सो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लिश इन सोशल लाइफ. वी हैव डन दिस अर्लियर ऑल्सो. सोशल लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है? because we have to express our ideas. Even today मैं हिंदी बोल सकती हूँ but still I am making use of English language. Why I am doing so? वो हमारी अंदर ही involve हो चुकी है that we have to speak in English by hook or by crook. Anyways, let's come to the next point, which is a foreign language already known to already known to Indians, right? अगर हमें स्पेनिश नहीं आती है, हमें जर्मन नहीं आती, हमें जापानीज नहीं आती, हमें चाइनीज नहीं आती, but we are knowing one foreign language which is English, which is of utmost importance. सबसे ज़्यादा important है English. हमें कोई भी लैंग्वेज आती हो, स्पेनिश, जर्मन, जापानीज, अरेबिक एट्सेट्रा, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको आती हो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट क्या है, इंग्लिश है, राइट? लास्ट पॉइंट, पासपोर्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट. ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू गेट एम्प्लॉयड इफ वी आर हैविंग गुड फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश. तो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस जो है इंडिपेंडेंस के बाद और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया. येस पीपल, सो अभी हमने डिस्कस कर लिया है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी. प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल और थोड़े और सब्सक्राइबर्स लेकर आओ अपने साथ. प्लीज़ रिकमेंड कि आई हैव स्टार्टेड द B.Ed syllabus here, so please do subscribe to my channel. Do not forget to like and hit the comment option also. Thank you so much. Okay, coming to the next point, which is importance of English language. So now we are going to study in general कि क्या इंपॉर्टेंस होती है इंग्लिश लैंग्वेज की. अब भाई एक सीधा सा गेस वर्क बता रही हूँ, जो पॉइंट्स हम लोगों ने पहले किए थे कवर, वही सब पॉइंट्स वापस से आएंगे इस पे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर. सो नीड नॉट फोकस मच ऑन दिस टॉपिक. एक ही बार याद कर लोगे, वही सेम पॉइंट्स जो है इसमें भी डाल देना. सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज. पहले भी डिस्कस किया था, विंडो टू द वर्ल्ड. थर्ड वन इज सोशल लाइफ में इंपॉर्टेंस है इंग्लिश की. द नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है, कल्चरल इंपॉर्टेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इंपॉर्टेंस है, पासपोर्ट टू द एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स, फॉरेन लैंग्वेज ऑलरेडी नोन टू इंडियंस, एंड द लास्ट वन इज इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंग्लिश इंपॉर्टेंस. क्या है इंग्लिश की इंपॉर्टेंस हमारे वर्ल्ड के अंदर, एंड दिस वॉज जनरली. तो आप ये पॉइंट्स जो है कहीं पे भी डाल सकते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, नेचर ऑफ इंग्लिश, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश, सब टॉपिक्स में एक ही पॉइंट आएगा.
सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे विच इज़ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स. अब इंग्लिश के अंदर कुछ मैक्सिम्स है जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है. तो लेट्स कम टू दीज लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स. ये आ सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, स्पेशली डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए. सो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वर्ड्स आर कंबाइंड फॉर एक्सप्रेसिंग द आइडियाज़. भाई हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं. पहले हमने पढ़ा था कि हम बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स को स्टडी करते हैं. सिलेबल्स को इकट्ठा करेंगे तो वर्ड्स बनेंगे, वर्ड्स को इकट्ठा करेंगे तो फ्रेजेस बनेंगे, फ्रेजेस को इकट्ठा करेंगे तो सेंटेंसेस बनेंगे, और सेंटेंसेस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो भी यही कहती है कि अगर हम वर्ड्स को कंबाइन करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है. कमिंग टू द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, फर्स्ट इज लैंग्वेज इज लर्न. भाई पैदा होने पे व्हेन वी आर बॉर्न, व्हेन वी आर एन इन्फेंट, हमें ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ आता है, ABCD शुरुआत से ही बोलते आ रहे हैं. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ व्हेन आई मदर फादर या फिर कोई भी हमारे को बता रहा है या फिर हमें स्टडी करवा रहा है, दे आर मेकिंग अस लर्न अल्फ़ाबेट्स या फिर सिलेबल्स. दे आर मेकिंग अस लर्न सम वर्ड्स लाइक मम जो होता है, हम वाटर को मम बोलते थे पहले. सो मम जो है वो भी हम किससे सीखते हैं, हमारे पेरेंट्स से ही सीखते हैं. वॉट एवर दे आर स्पीकिंग वही हम इमिटेट करते हैं, राइट. तो लैंग्वेज जो है वो लर्न है. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, लैंग्वेज इज लर्न. द सेकेंड वन इज लैंग्वेज इज अ सिस्टम. लैंग्वेज के अंदर पूरा एक प्रॉपर सिस्टम है. ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दिया कभी भी, राइट. ऐसा नहीं होता. लैंग्वेज इज अ सिस्टम. इसमें 3 सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे अकॉर्डिंग. द फर्स्ट वन इज द साउंड सिस्टम. भाई हम लोग किसी भी चीज़ को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. तो द साउंड सिस्टम जो होता है उसमें हमें पता चलता है फोनेटिक्स के बारे में. ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज क, इस तरीके से ये साउंड सिस्टम होता है. द सेकेंड वन इज द वोकैबुलरी सिस्टम. अब ऐसा कहा जाता है व्हेन वी आर इन द जूनियर क्लासेस, एटलीस्ट वी शुड हैव अ वोकैबुलरी ऑफ 2500 वर्ड्स विद अस. हमारे दिमाग के अंदर हमारे को 2500 वर्ड्स आने चाहिए, राइट. तो एक सिस्टम है जिसमें कि हम लोगों ने वोकैबुलरी को इन्वॉल्व कर रखा है अलॉन्ग विद द साउंड्स. द थर्ड वन इज द स्ट्रक्चर. जब हमें साउंड आ जाती है, वोकैबुलरी आ जाती है, तो धीरे धीरे हम जो है स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव करने लगते हैं. जैसे कि इज, एम, आर अगर हमें यूज़ करना है तो उनके रूल्स क्या है. इज कब यूज़ करेंगे, इज जो है प्लूरल के साथ तो यूज़ नहीं कर सकते, राइट. तो ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो हमें पता होना चाहिए, तभी हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर पाएंगे और उनको यूज़ कर पाएंगे, राइट. सो लैंग्वेज इज अ सिस्टम. अब लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स. सो द थर्ड पॉइंट हियर, द थर्ड प्रिंसिपल हियर सेज लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम. लैंग्वेज सिस्टम्स का सिस्टम है. अब साउंड सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वोकैबुलरी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, स्ट्रक्चर्स के अंदर भी डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं. तो हर सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं, तब जाके एक लैंग्वेज फॉर्म होती है. तो इंग्लिश लैंग्वेज के पीछे भी बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जो हमें अभी भी नहीं पता. बीइंग अ टीचर हमें नहीं पता होगी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से, बट लैंग्वेज जो है वो बहुत सारे सिस्टम्स का सिस्टम बना होता है. नेक्स्ट वन, लैंग्वेज इज यूनिक. ऐसा नहीं होता कि सब लैंग्वेजेस की जो ये स्ट्रक्चर होते हैं, वोकैबुलरीज होती है, वो सेम हो, ठीक है ना. कुछ चीज़ हम इंग्लिश में बोलते हैं तो वो संस्कृत में भी कॉमन निकल आती है. आई एग्री टू दिस पॉइंट, बट हर लैंग्वेज जो है अपने आप में यूनिक होती है. ऐसा नहीं होता कि स्पेनिश में जो वर्ड बोल रहे हैं वो इंग्लिश में भी वैसे ही बोलते हो, उसी वर्ड का उसी प्रोनाउंसिएशन हो, राइट. हर लैंग्वेज जो होती है वो अलग होती है, डायनेमिक होती है और यूनिक होती है. द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट. स्किल सब्जेक्ट दैट मीन्स स्किल क्या होता है, जिस चीज़ को हमें लर्न करना पड़े, एक्वायर करना पड़े, राइट. सो स्किल सब्जेक्ट है. ऐसा नहीं है कि कोई भी उठकर मतलब इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा या हिंदी बोलना शुरू कर देगा. इट इज़ टू बी लर्न. हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था इट इज़ टू बी लर्न, तो वही यहाँ पे डील करता है. दैट मीन्स एक स्किल को एक्वायर करने में भी हमें टाइम लगता है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन. वो तो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं. दैट मीन्स इट इज़ यूज फॉर द एक्सप्रेशन, इंटरैक्शन, एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द कल्चर. हमें पता ही है कल्चर और लैंग्वेज जो है वो हैंड इन हैंड गो करते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया था पंजाब और असम का, सो यू कैन पुट इन द सेम एग्जाम्पल्स हियर. द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग. एवर चेंजिंग का मतलब चेंज होती रहती है. इट इज़ गेटिंग मॉडेस्टिंग, मतलब वो बढ़ रही है आगे. दैट मीन्स ऐसा नहीं है जो हमने इतने साल, आज से 1000 साल पहले जो लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर रहे थे इंग्लिश, वैसी की वैसे ही आज सारे रूल्स है, सारे स्ट्रक्चर्स है, सब चीज़ें वैसे ही है. ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. वो सब चीज़ें जो है वो टाइम के साथ साथ अपग्रेड होती रहती है, राइट. सो लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग. वो चेंज होती रहती है. द स्ट्रक्चर्स आर इवॉल्विंग. नई चीज़ें आती रहती है इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई भी लैंग्वेज हो उसके अंदर.
राइट. द लास्ट वन इज, यहाँ पे हमारे पास 10 प्रिंसिपल्स थे एंड वी आर ऑन द लास्ट वन हियर. लैंग्वेज इज वोकल, मतलब हम लोग स्पोकन फॉर्म भी बोल सकते हैं इंग्लिश की या फिर कोई भी लैंग्वेज की. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म हियर इज, कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको हम वोकल नहीं बोल सकते, कोरस में नहीं बोल सकते या फिर वोकल हम लोग नहीं बोल सकते. हर लैंग्वेज का एक स्पोकन फॉर्म होता है और एक रिटन फॉर्म होता ही है. सो दीज आर ऑल द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स जो अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट, जो मुझे लगता है कि पेपर में 100% आने वाला है, एंड टॉपिक नेम इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश या फिर टीचिंग एनी लैंग्वेज. अब भाई सबसे पहले तो ये आता है कि व्हाट आर एम्स, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले तो इसके बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ये हम सबकी बुक्स में भी दिया हुआ है इन द टैबुलर फॉर्म. यू कैन ऑफ कोर्स चेक द SM आचार्य बुक, राइट. तो उसमें दिया हुआ ये चीज़ कंप्लीटली अच्छे से दी हुई है. सो coming to the brief points of aims and objectives. First one is aim. aim जो होता है वो जनरल पर्पस के लिए होता है, ठीक है ना. जनरल पर्पस ऑफ एजुकेशन, यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि अगर मैंने पूरे साल का इंग्लिश का सिलेबस बच्चों को करवा दिया तो बच्चों को भाई ग्रामर आनी चाहिए, उनको लिटरेचर के चैप्टर रीड करने आने चाहिए, उनको साइलेंट रीडिंग आनी चाहिए. ये मेरा क्या है, जनरल एम है कि हर बच्चे को आना चाहिए, भले ही वो बच्चे के अंदर कितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों ना हो. ये एक जनरल एम है जो मैं इस्टेब्लिश कर रही हूँ अपने अकॉर्डिंग, राइट. नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, ये स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, expresses the specific function of the एजुकेशन. और ये जो होता है ये एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, ठीक है ना. तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं दे वर्क ऑन द शॉर्ट टर्म गोल्स. एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टोरी पढ़ाई अभी अभी मैंने किसी भी बच्चे को. आई वुड वांट, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई कि वो जो है इसमें से कुछ वोकैबुलरी वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए या फिर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स अपने दिमाग में याद रखे, ठीक है. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव. ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, जबकि एम्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं और जनरल होते हैं, ठीक है ना. बाय द एंड ऑफ 12th क्लास हम क्या चाहेंगे, हमारा एम यही होगा कि हर बच्चा रीडिंग कर सके, राइटिंग कर सके, क्रिएटिव राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए हर बच्चे के अंदर. तो ये क्या है, हमारे एम्स है. बट अगर हम लोग उस क्लास के अकॉर्डिंगली सेटअप करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने सोचा कि 12th क्लास में बच्चे को ये सिलेबस तो ज़रूर आना चाहिए, ये सब ग्रामेटिकल टॉपिक ज़रूर आने चाहिए. दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, उसी टाइम पे ख़त्म हो जाता है. सो नाउ कमिंग टू द जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश. इंग्लिश क्यों पढ़ाना है, इसके जनरल एम्स क्या है. नंबर 1, इंजॉय कर सके बच्चा लर्निंग इंग्लिश की, ठीक है ना. बच्चे को इंजॉय करना आना चाहिए. अगर वो अपना इंटरेस्ट इसमें नहीं सेट कर पाता इंग्लिश में तो क्या होगा, बच्चे का आगे भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा और वो कभी भी इंग्लिश को सही से लर्न नहीं कर पाएगा. कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, लिसन एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश. बच्चे को जब एक टीचर बोल रही है गो टू योर सीट देयर, क्लोज द डोर या फिर स्विच ऑफ द फैन, अगर मैं कुछ भी ऐसा इंग्लिश में बोल रही हूँ, कोई कमांड दे रही हूँ, कोई ऑर्डर दे रही हूँ या फिर कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूँ बच्चे से, द चाइल्ड शुड बी एबल टू लिसन टू इट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट इज स्पीक इंग्लिश विद पीयर्स एंड टीचर्स. भाई बच्चा जो है वो अपने साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जो है वो इंग्लिश बोल सके और हमारे साथ नॉर्मल इंग्लिश भी यूज़ कर सके. कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स जो है बच्चों को आने चाहिए. लाइक अगर आपकी क्लास में किसी का बर्थडे है तो बच्चे क्या बोलेंगे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. दे शुड नो दिस थिंग, ठीक है ना. तो इंग्लिश जो है उनको बेसिक लेवल पर आनी ज़रूरी है. नेक्स्ट वन, ट्रेनिंग इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश. बच्चों को भाई हमें ट्रेन करना है सो दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश एंड they should be able to read the things in English language. अब the children are having the syllabus books, right, जो ये literature books होती है बच्चों की, language books होती है, they should be able to read those books themselves also. ऐसा नहीं है कि हर समय बच्चा जो है वो dependent हो टीचर के ऊपर, right. Coming to the next point, the child should be able to write in English. उसके लिए क्या है, हमें proper cursive writing books लगानी चाहिए या फिर block writing books जो होती है वो होनी चाहिए बच्चों के लिए. The children should be introduced to some quotations, जैसे hard work is the key टू सक्सेस. अब बच्चे को ये लिखवाओ, उसका मीनिंग बताओ, इससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट भी आ जाएगा. ही विल बी एबल टू स्पीक इट इन इंग्लिश. नेक्स्ट, ही वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन इंग्लिश, ही वुड बी एबल टू लिसन टू इट इन इंग्लिश, ही वुड बी एबल टू राइट इट इन इंग्लिश. सब ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इकट्ठे ही कंप्लीट हो जाएंगे. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ही शुड बी एबल टू एंजॉय द एसे, स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स इन इंग्लिश. बच्चा जब पढ़ पाएगा तो अपने आप एंजॉय भी करेगा. ही शुड बी इंट्रोड्यूस टू साइलेंट रीडिंग ऑल्सो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली.
भाई बच्चे को साइलेंट रीडिंग नहीं आएगी तो फिर वो आगे जाके बहुत ही प्रॉब्लम सिचुएशन में आ सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लर्न्स साउंड्स, वोकैबुलरी टर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश। अब बच्चे को हमें क्या सिखाना है कि सारी साउंड्स आनी चाहिए, 2500 वर्ड्स कम से कम आने चाहिए बच्चे को 8th क्लास में जब वो आ जाता है तब तक के पीरियड में। एंड अलॉन्ग विद दिस उसको बेसिक स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, इज एम आर कहाँ यूज़ करना है, वॉज वर कहाँ यूज़ करना है, हैज़ हैव हैड कहाँ यूज़ करना है हमें, या फिर कोई और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ए एंड द कहाँ यूज़ करना है, कॉमन नाउंस क्या होते हैं, प्रॉपर नाउंस क्या होते हैं। द चाइल्ड शुड बी एबल टू नो ऑल दीज थिंग्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एबल टू प्रेजेंट हिज व्यूज़ इन इंग्लिश। भाई आजकल जो है एक SLR एक्टिविटीज़ होने लग गई हैं स्कूल में, जिसमें कि क्या होता है बच्चे को एट द मोमेंट एक चिट जो है वो पिकअप करनी है और उसमें कोई भी टॉपिक लिखा होगा, सपोज इन द पार्क, अ डे इन द पार्क, तो बच्चे को अपने व्यूज़ जो है वो प्रेजेंट करने आने चाहिए, किस में, इंग्लिश में आने चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए बच्चों की। तो ये चीज़ जो है हम LKG UKG में ही आजकल शुरू कर देते हैं, फोनेटिक्स, राइट। आप सबको पता ही होगा फोनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस आ गया आजकल की सिलेबस के अंदर स्पेशली, राइट। तो इससे क्या होता है बच्चे की प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन स्ट्रेस देना आ जाता है बच्चों को कि किस वर्ड पे, किस सिलेबल पे हमें कब स्ट्रेस देना है। इसके लिए हम प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन के लिए हम स्टोरी नरेशन एक्टिविटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, 10th पॉइंट है ये हमारा करेक्ट यूज़ ऑफ पंक्चुएशंस। पंक्चुएशन जो है एक कॉमा की भी बहुत वैल्यू होती है, एक फुल स्टॉप की भी बहुत वैल्यू होती है। जितने भी हमारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए बच्चों को। ये नहीं है कि खाली रिटन में यूज़ करना आना चाहिए, बट ऑल्सो व्हेन वी आर स्पीकिंग समथिंग तो हमें आना चाहिए कि कॉमा है तो वी हैव टू पुट अ पॉज हियर। तो इस तरीके से have to teach the children about punctuations also. So this was all about the general aims and objectives of teaching English. Coming to the next most important thing here, aims और objectives के अंदर एक second heading है जो कि है some most important points and aims of teaching English. तो इसमें क्या होना चाहिए भाई, सबसे पहले बच्चे को लिसनिंग आनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, लिसनिंग। सेकंड पॉइंट है साइलेंट रीडिंग करनी आनी चाहिए बच्चों को इंग्लिश में। थर्डली हम चाहते हैं कि बच्चा जो है वो स्पीकिंग में अच्छा हो, फ्लुएंट हो। नेक्स्ट पॉइंट इज लाउड रीडिंग, जब कोरस के लिए बोला जाता है बच्चों को तो वो भी आना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ राइटिंग। तो 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश के लिए हम लोग एम करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे ऐसी चीज़ें कर सके। तो 5 पॉइंट्स कौन से लिसनिंग, स्पीकिंग, साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग एंड राइटिंग। अब ये दिए हुए हैं SM आचार्य वाली बुक में पेज नंबर 14 और 15, सो प्लीज़ डू रीड इट फ्रॉम देयर, राइट। कमिंग टू द जूनियर लेवल एम्स। अब जूनियर लेवल पे भी हमें कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जूनियर लेवल इज 6th 7th एंड 8th लेवल हियर, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ एम्स होते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे कुछ चीज़ें फुलफिल कर सके। सो कमिंग टू द जूनियर लेवल पॉइंट्स हियर, द फर्स्ट वन इज मेकिंग सिंपल सेंटेंसेज एंड एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। बच्चा जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, सिंपल सेंटेंसेज जो है वो फॉर्म कर सके। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्यूज मी, प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। भाई बच्चे को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, हर चीज़ को स्ट्रेस देना आना चाहिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे स्ट्रेस दे, रिदम होनी चाहिए पढ़ने में, कोरस में, एट्सेट्रा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन बच्चों को अच्छे से पता होनी चाहिए। स्पेलिंग्स कब आती है बच्चों को अच्छे से, आई यूजुअली गेट द कंप्लेंट्स फ्रॉम द पेरेंट्स कि भाई ये मेरा बच्चा जो है इसे स्पेलिंग्स तो आती नहीं है, ऐसे इसे कुछ भी कहीं पे भी लिख देता है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, फोनेटिक्स बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चों का फोनेटिक्स के अंदर बेस जो है अच्छा बना दिया जाएगा तो ऑफ कोर्स द चाइल्ड इज़ गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दैट, और उसकी स्पेलिंग्स जो है वो अपने आप इन्हांस हो जाएंगी, ठीक है ना। रीडिंग एबिलिटी, हर बच्चे के अंदर रीडिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है इनकलकेट करना, स्पेशली जब चाइल्ड जो है वो UKG से 1st क्लास में मूव करता है तो हम लोग बहुत फोकस करते हैं, बहुत एम्फेसिस होता है हमारा रीडिंग स्किल्स पे, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्ड टू द शॉर्ट क्वेश्चंस। तो बच्चा जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर देना सीख जाए, ऐसा हमारा एम और ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट वन इज़ वोकैबलरी। वोकैबलरी आना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए बच्चों को शुरुआत से, स्पेशली फ्रॉम द 4th 5th क्लास, मुझे ऐसा लगता है कि डिक्शनरीज का यूज़ ज़रूर सिखाना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं सिखाते हैं, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द स्पोकन इंग्लिश। हर बच्चे को समझ में आना चाहिए कि टीचर उसके सामने क्या बोल रही है, या फिर उसका कोई पीयर है या फिर कोई क्लासमेट है, ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरा दोस्त क्या बोल रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्ड टू द ग्रीटिंग्स, कॉल्स एंड रिक्वेस्ट इन इंग्लिश। अब बच्चे को जो है हर चीज़ का आंसर आना चाहिए। ग्रीटिंग, अगर आई एम सेइंग गुड मॉर्निंग और इफ़ आई एम सेइंग गुड इवनिंग, तो बच्चे
को पता होना चाहिए कि मुझे उस टाइम पे क्या ग्रीटिंग करना है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे या फिर एट द एंड ऑफ द क्लास द चाइल्ड मस्ट लर्न टू स्पीक हैव अ नाइस डे मैम, हैव एन अमेजिंग डे अहेड, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट ग्रीटिंग्स जो है बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जूनियर लेवल में। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक विच इज़ एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सीनियर लेवल। अब आता है सीनियर लेवल यानी कि 9, 10, 11, 12, ठीक है ना। अब इसमें हमारे लिए क्या ज़रूरी है, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। बच्चों को क्या है, इंग्लिश जो है फ्लुएंटली बोलनी आ जानी चाहिए, क्योंकि फ्लुएंट इंग्लिश के साथ ही कल को उनके कॉलेज में दे आर गोइंग टू प्ले एन इफेक्टिव रोल दियर, राइट। थिंक स्पीक इन इंग्लिश, तो बच्चे को आसानी से जो वो सोचेगा इंग्लिश में वही वो एक्सप्रेस कर सके, ऐसा हमें हेल्प करना चाहिए। सो वी शुड बी हेल्पिंग द चिल्ड्रन टू पे अटेंशन मोर टू इंग्लिश, दे शुड बी एबल टू थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश। जो उनके दिमाग में चल रहा है वही उनके मुंह से भी बाहर आना चाहिए। दे शुड बी एक्सप्रेसिव, ठीक है ना, तो उन्हें एक्सप्रेस करना आना चाहिए अपने आप को। Coming to the next point, acquire the vocabulary of 2500 words approx, including the phrases and the idioms. तो अब बच्चे को जो है idioms आने चाहिए, phrases आने चाहिए। This is not my cup of tea, नॉर्मल एक idiom एक phrase हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों को इसका मीनिंग पता होना चाहिए, या फिर और भी आई एम ऑन क्लाउड 9, ठीक है, या फिर आई एम फीलिंग ब्लू टुडे। इस तरीके से जो नॉर्मल एक phrases होते हैं बच्चों को इनके मीनिंग्स आने चाहिए, along with the vocabulary terms of course, ठीक है। Coming to the next point which is अंडरस्टैंडिंग द नेटिव स्पीकर्स, मतलब जो लोग बाहर से आते हैं इंटरनेशनली, जो उनका एक्सेंट होता है इंग्लिश बोलने का, द चिल्ड्रन जो इंडिया के बच्चे हैं उनको स्पेशली हमें सिखाना चाहिए। वी शुड एक्चुअली ट्रेन देम टू अंडरस्टैंड द नेटिव स्पीकर्स, कि क्या वो बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनका एक्सेंट क्या है, लैटिन अमेरिकन इंग्लिश क्या होती है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश क्या होती है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश क्या होती है, राइट। रिस्पॉन्ड टू देम, बच्चे को उसे रिस्पॉन्ड भी करना आना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रीडिंग बुक्स इन विद अंडरस्टैंडिंग, तो बच्चा जो है वो अपने आप बुक्स पढ़ सके। इसके लिए आई हैव सीन अ स्टेप इन वेरियस प्राइवेट स्कूल्स, कि आजकल क्या है, आई एम हैविंग अ 4th क्लास चाइल्ड हियर विद मी एंड ही इज़ रीडिंग अ बुक, रस्किन बॉन्ड्स बुक द ब्लू अम्ब्रेला। तो ये एक अमेजिंग वे है जिसमें कि क्या हो रहा है, बच्चे खुद से बुक पढ़ते हैं, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नॉवेल्स बाय देमसेल्फ। तो इससे क्या हो रहा है भाई, रीडिंग एबिलिटी जो है वो भी इंप्रूव हो रही है, अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव हो रही है, साइलेंट रीडिंग भी, कॉम्प्रीहेंशन भी इंप्रूव हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कवर हो जाते हैं। अब गाइज इसमें जो है हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। वी आर हैविंग सम मोर टॉपिक्स हियर विच इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, कोऑपरेटिव लर्निंग एट्सेट्रा। ये सब कुछ टॉपिक्स है जो कि मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज ये सब जो है आपकी सेकेंड यूनिट में आएंगे, सेकेंड चैप्टर में आएंगे इनफैक्ट। सो वी वुड बी डीलिंग विद ऑल दीज अप्रोचेज देयर इटसेल्फ। तो यहाँ पे आपकी यूनिट जो है वो ख़त्म होती है, एन ओवरव्यू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। इट शुड बी हेल्पफुल टू यू, आई बिलीव दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सक्सेस ड्राइवर्स बाय दीप्ति। ऑल्सो आई वुड बी अपलोडिंग ऑल दीज नोट्स ऑन फेसबुक पेज, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके ज़रूर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए उसे, एंड यू कैन ऑफकोर्स गेट ऑल दीज थिंग्स देयर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, कोई भी इंक्वायरी है, यू कैन डायरेक्टली गो टू Gmail एंड दीप्ति 1998 जुलाई पे जाकर आप मुझे वो इंक्वायरी लिख सकते हैं। श्योरली आई एम गोइंग टू हेल्प यू with that. Thank you so much. Bye bye.